कुछ लोग होते हैं ना शौकिया फिल्म करते हैं कि मीन दे विल यार आई जस्ट वांट टू पुट इट. कई लोग होते हैं, मतलब हमारे पास भी बहुत लोग आते हैं जो सिर्फ नाम के लिए जी हमारा नाम डाल दो, हम पैसे दे देते हैं. जुबेन नौटियाल who was struggling with me कि सर मेरे सिंगल्स किया करो, आप एक ही सिंगल करते हो साल में. पीपल वर डिमांडिंग फॉर दिस सॉन्ग. ये एक लाइन गाता था, लोग पूरा गाना गा देते थे आगे. करेक्ट, ऐसा कुछ आता है एक शो. तो हमने ऋतिक रोशन को रिक्वेस्ट करी और उसको करके किया, और वो गाना जब हमने सब यहाँ प्लेटफॉर्म्स को दिया तो दे स्टार्टेड टेकिंग अप. अरे यार ये तो हमारे लिए फिल्म गाने के तरीके, चलो ये ले लेते हैं. All right, Bhushan ji, congratulations for Lut Gaye clocking almost 300 million views. Now, my first question to you, sir, is that you have tremendous experience when it comes to music and independent music. Many would say that a dance number, for example, like a Patli Kamariya, is something that people take to immediately. But making a romantic song work, which is like a slow number work, is the tough part. And when you do the numbers, sort of numbers that Lut Gaye has done, that is a huge achievement. Do you agree with that, sir? Yeah, I agree to it a bit because according to me, nowadays the romantic, the mellow means it's called laid back romantic, means with that pathos and the romance in it. That kind of song with the brighter rhythm like Lut Gaye, because we have done earlier singles also with Zubain only, like Befa Tera Masoom Chehra, which is a super duper hit. मैं जिस दिन बुला दूं is a super duper hit. मेरी आशिकी पसंद आए, that's a super duper hit. All are our romantic songs with that kind of romance in it, with that kind of pathos in it, but with the bright rhythm. So I will not agree to that point. It used to be before. Okay, if it is a dance number, it will catch on immediately, and the romantic number will take a lot of time. Now that's not happening. We have cracked that formula from during the lockdown, where when dancing numbers were not working big time, because dancing number works when people listen to those songs in a discotheque, in parties, in clubs, or while they're partying at home. But unfortunately, in lockdown, in the beginning of the lockdown, when we started making these non-film songs, that time the dance tracks were not working. So this romantic, bright romantic, with that kind of pathos feeling and great lyric kind of songs got that space to enter the market. And we started the process with that, and we got one after the other hits with different artists, but most of them were with Zubain Nautiyal, who was struggling with me कि सर मेरे singles किया करो, आप एक ही single करते हो साल में. तो इस बार इसके अभी this is his 12th single, I guess, in 1 year, which is, I don't think there is any singer in the recent past who has released his 12 singles in a year. It used to happen in 90s when my father used to do non-film songs. That time he used to release, उस टाइम सोनू निगम के वो 10-10 गाने रिलीज होते थे, मतलब 20-20 नहीं, एक्चुअली वो तो आई थिंक 40 गाने रिलीज होते थे साल में. तो उस तरीके का कुछ माहौल अभी बनना शुरू हुआ है, बिकॉज देयर वाज scarcity of music during the lockdown, because films were not coming. And नॉर्मली मीन्स हर जो भी हम फिल्म बनाते थे या हमारी रिलीज होती थी या हमारे पास म्यूजिक होता था, उसमें जुबेन का एक गाना तो होता ही था. तो ही यूज्ड टू वेट, मीन्स एज एन आर्टिस्ट, एंड वी आल्सो यूज्ड टू वेट कि यार फिल्म आएगी, देन our artist will be big enough, and singles के लिए इतना टाइम ही नहीं मिलता था. But now in lockdown we got a lot of time, we did so many singles, we got so much big success, and the kind of numbers which we are getting for these kind of romantic songs, I'm not getting for my dance track, which are very attractive, which are catchy, which has a good dancer, heroine dancing to it. I'm not getting that kind of response to that. So everything has to be merged into the romantic and that kind of pathos zone. Like if you have seen, I recently did a song with Nora Fatehi and Parampara, which is called Chhod Denge. It's again a pathos song, but with that kind of dance and angst to it, and that kind of aggression in the song. That's also doing very, very well.
एक हमने किया था डांस ट्रैक which really did very well, that was नाच मेरी रानी, which is almost touching 500 million in less than 4 months, I guess, which is also a big thing. Again, that was a combination. We joined. If you'll see, it is not like a proper item song. It is a romantic kind of song with that kind of uh, dance beat. एक mid tempo की dance beat डाल के हमने वो experiment किया, and that also worked big time. So overall, there is a combo which is working. But I would say what you asked, okay, romantic songs, a good romantic song with that kind of melody and that kind of song which can be hum properly. You know, okay, if I'll make you listen, जैसे ही मैंने आपको गाना सुनाया, आप उस 2 बार सुनने के बाद आप जब करेंगे लुट गए, you are start humming it. So that's the beauty of it, and that's the way. That's where our ears and our experience come into the picture, where we select that kind of song which people will start humming immediately. And that's the thing which that's why we are getting success one after the other, and most of them is with Zubain Notial, who's sitting next to me. अब आप भी बोलो कुछ. No, so Jubain, my question to you is, you are a natural when it comes to romantic songs, but do you think that it also requires a lot of belief of, say, someone like Bhushan Kumar to back a song like, say, Lut Gaya, for example, because since it is the rage right now, and to just visualize that, yes, even this song has a potential to cross 300 million or 500 million. Do you think it also requires courage and vision? Definitely, I think Bhushan ji is much more involved with the entire process of the song, from when it comes to production, from when it comes to composition, to writing. Then it goes down a path when it is released and then promoted. And then after that point of time, when it starts getting its numbers, where it's getting the numbers from, how many people are listening. I think that is the kind of commitment Bhushan ji has towards the song, to gauge his audience, to gauge the people that are listening to music that he's making. So definitely, कितनी बार ऐसा होता है कि कुछ ऐसे गाने होते हैं जिसमें मैं थोड़ा सा रिलक्टेंट होता हूँ, मुझे लगता है पता नहीं मैं अच्छा साउंड कर रहा हूँ इस गाने पे, नहीं, but he's confident. He's like, you just don't worry, just let me handle it. And those are the numbers that I'm probably known for today. So definitely it requires his belief and faith in the song. Right. Bhushan ji, कुछ टाइम पहले, कुछ सालों पहले ये कहा जाता था कि इंडिया में जो म्यूजिक है दैट इज प्राइमरली फिल्म म्यूजिक, कि हमारे वहाँ जो नॉन फिल्म म्यूजिक है या जो पॉप म्यूजिक एक टाइम पे था वो सब उतना नहीं है. मे बी इट इज नॉट द कमर्शियली वायबल एंड ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स आर सेड. इट सीम्स दैट यू टुक इट अप एज अ चैलेंज, and the way you believed in a lot of your artists, I still remember the way Yo-Yo Honey Singh's songs came out were huge. Do you think you took it up as a challenge that not only you would revive non-film music in India, but you'll present it on a huge scale? See, that's what the only idea means, because earlier I still remember जब हम लोग सिंगल्स करने की सोचते थे तो हमें all these platforms, radio stations, television platform, everybody was so much into Bollywood music कि नहीं यार हमें एक्टर चाहिए, एक्टर का चेहरा चाहिए, एक्टर के विजुअल चाहिए, हम एक्टर के विजुअल के बिना इतना नहीं चलाएंगे, थोड़ा चला देंगे, आपके साथ रिलेशन है. I used to explain to them कि please judge a song with a song, not from the चेहरे से मत आप कीजिए कि ये मेरे को नॉन चेहरा मेरे को TRPs देगा तो इसीलिए मैं चलाऊंगा. मैंने कहा, आई एक्सप्लेन्ड इट टू देम कि यार ये चीज आप मानो, बट ऑब्वियसली एक चीज जब एक चल रही होती है तो नोबडी वांट्स टू टेक दैट, किसी को वो एक्सपेरिमेंट नहीं करना. लेकिन मुझे एक मार्केट नॉन फिल्म की डेवलप करनी थी. इनिशियली आई स्टार्टेड विद मींस टेकिंग वॉइसेस ऑफ माय सिंगर्स एंड मर्जिंग इट विद द एक्टर्स. दैट टाइम आई डिड द सॉन्ग विद ऋतिक रोशन, featuring Hrithik Roshan and Yo-Yo Honey Singh. Dheere. This time Yo-Yo Honey Singh was not well, and he definitely needed a song because he was not able to shoot on himself that time. तो हमने ऋतिक रोशन को रिक्वेस्ट करी और उसको करके किया, और वो गाना जब हमने सब यहाँ प्लेटफॉर्म्स को दिया तो दे स्टार्टेड टेकिंग अप. अरे यार ये तो हमारे लिए फिल्म गाने के तरीके, चलो ये ले लेते हैं. देन वी डिड अ सॉन्ग विद इमरान हाशमी.
That also they supported. It was a same song. It was not a film song. It was a non-film song only, which we made, and we just picturized it on Imran Hashmi that time. That Main Rahun Ya Na Rahun. It was a Right. song by Amal. Aman and Amal. Right. Then we did a lot of songs with Tiger Shroff. Yes. That also did very well. वो भी बहुत supportive मिला. फिर उसके बाद obviously film music में ही लोग ज़्यादा वो रहते थे, and we used to do occasionally singles and all these stuff. But my dream was कि यार मुझे ये non film market को किसी तरीके भी ऐसा लाना है कि मेरे singers जो हैं उनके चेहरे भी popular हों. तो we used to do, जैसे हम जुबैन के साथ एक single करते थे साल में, क्योंकि बाकी टाइम पूरा फिल्म म्यूजिक खा जाता था, तो हम बोलते थे अच्छा वो फिल्म म्यूजिक और इसको मिक्स नहीं करते हम. और जब सारे प्लेटफॉर्म्स को जिनको हम देते हैं, और ऑडियंस भी, अगर सिर्फ ऑडियंस तो सुनना चाहती है, लेकिन अगर प्लेटफॉर्म ही सपोर्ट नहीं देगा तो ऑडियंस तक पहुंचेंगे कैसे हम गाना लेके. तो मैंने बोला ठीक है, अब ये लोग चाहते ही फिल्म म्यूजिक है, तो हम अपने सिंगर्स को फिल्म म्यूजिक में ही प्लेबैक कराते हैं, और किसी किसी में उनका विजुअल शूट करके फिल्म विजुअल के साथ मिक्स करके डाल देंगे. बट वो भी बहुत ओकेजनली होता था, बिकॉज सम पीपल, सम ऑफ डायरेक्टर एग्री टू दिस काइंड ऑफ फॉर्मूला ऑफ प्रमोटिंग, सम पीपल डोंट एग्री. तो वो चीज चलती रही, हम लोग पुश करते रहे. देन लॉकडाउन के, देयर वाज नो बॉलीवुड म्यूजिक, सब बॉलीवुड म्यूजिक सब बंद हो गया. तो उस टाइम हमें था कि यार गाने तो बनाने ही पड़ेंगे, क्योंकि हम लॉकडाउन में, लोग घर पे तो बैठे हैं, लोग गाने तो सुनेंगे. एंड टुडे एवरीथिंग इज डिजिटल, नोबडी हैज टू गो टू द मार्केट एंड बाय अ सीडी और अ कैसेट. तो व्हाट टू डू, लेट्स मेक सिंगल्स नाउ, लेट्स प्रमोट आवर सिंगर्स, उनके हम वो बनाते हैं. तो उस टाइम हमने रिस्ट्रिक्शंस थी, तो गाने रिकॉर्ड घर पे होते हैं, घर पे बन के गाने आ गए. हमने होम वीडियोस करने शुरू किए. दर्शन रावल के साथ हमने होम वीडियो किया, नेहा कक्कड़ के साथ हमने होम वीडियो किया, टोनी कक्कड़ के साथ हमने होम वीडियो किया. वो गाने अच्छे चलने लग गए, क्योंकि उस टाइम कोई म्यूजिक ही नहीं था. एंड एवरीबडी स्टार्टेड सपोर्टिंग, रेडियो स्टेशन स्टार्टेड सपोर्टिंग, टीवी स्टार्टेड सपोर्टिंग, मीडिया स्टार्टेड सपोर्टिंग, क्योंकि देयर वाज नो अदर म्यूजिक. तो उनको पुराने गाने चलाने और साथ में नए गाने चाहिए, तो ये नॉन फिल्म ही मिल रहे थे. तो दे स्टार्टेड डूइंग दैट. और फिर हमने एक के बाद एक हमने गाने देने शुरू किए अक्रॉस ऑल लैंग्वेजेस. और फिर जैसे ही लॉकडाउन खुला, जिसमें शूटिंग हो सकती थी, फिर हमने अपने सिंगर्स को शूट करना शुरू कर दिया. तो वी डिड लॉट ऑफ सिंगल्स ड्यूरिंग द लॉकडाउन. एंड आउट ऑफ दैट, मतलब हमने जो 50 से 60 मेजर बड़े वाले किए हैं, उसमें से हमारे 40-45 सुपर डुपर हिट हो गए, जिसमें से 12 के करीब तो जुबैन के साथ ही हुए. जो ये तरसता था कि मेरे साल में एक ही होता है, now he has got so many कि he's saying कि सर अब थोड़ा रोक दो, बहुत overdose ना हो जाए. So but I'm very happy they are getting that kind of visual एक recognition मिल रहा है एक आर्टिस्ट को वॉइस के साथ. अदरवाइज एक आर्टिस्ट सिर्फ प्लेबैक सिंगिंग वॉइस बन के रह जाता है, उसको ज्यादा लोग शक्ल से नहीं पहचान पाते. देयर आर सो मेनी सिंगर्स हु आर जस्ट प्लेबैक सिंगर, तो दे डोंट नो, पीपल नॉर्मल पब्लिक डोंट नो देम बाय फेस. जब वो नाम बताएंगे तब मालूम चलता है कि हाँ यार ये सिंगर है जो इतना पॉपुलर है. अदरवाइज आप विजुअल के बिना होता नहीं है. लेकिन अब बिकॉज ये लॉकडाउन में इतनी चीजें हुई, अब एक हैबिट बन गई है. आपके टेलीविजन चैनल की भी हैबिट बन गई है, वो भी उसको बहुत अच्छी टेलीविजन रोटेशन देते हैं. रेडियो स्टेशन वाले भी गाना चलाते हैं. स्ट्रीमिंग साइट्स पे भी फिल्म्स के बराबर में जाके ये उससे ज़्यादा ही प्लेसमेंट्स वगैरह सारी स्ट्रीमिंग साइट्स पे मिलती हैं. So otherwise it was everywhere. It was in Hangama also, it was in Sawan also, it was in everywhere. They used to give placement and everything to a film song. तो अभी बहुत अच्छा लगता है, सिंगर्स को भी बहुत बढ़िया लगता है कि यार हम प्रमोट हो रहे हैं, हमारा सिंगल है, उसके ऊपर हमारा फेस लगा हुआ है, और वो हर स्ट्रीमिंग साइट्स के ऊपर प्रमोशन में हमारा फेस ऊपर आ रहा है, और लोगों को पता चल रहा है कि यार ये मैं सिंगर हूँ और ये मेरा गाना है. Definitely. Now, जुबिन, आपके काफी गाने आपके ऊपर पिक्चराइज करे गए हैं. It is definitely a bigger responsibility as well. How satisfying is it when a song where you are being featured in the music video as well, you have sung it, there is the entire idea is maybe coming from
from your mind or your experience? Because बहुत बार जो आर्टिस्ट होते हैं वो अपने खुद के experiences को अपने गानों में भी बयान करते हैं. How satisfying is it when a song featuring you, sung by you, does great numbers? So, as far as playback singing is considered, playback का टेस्ट मुझे लग गया था काफी प्लेबैक करने का, काफी कुछ एक्सप्लोर करके एक्सपेरिमेंट कर रहा था. पर जब से सिंगल्स शुरू करे हैं मुझे ऐसा लगता है इट इज बीन मैसिवली हेल्पिंग माय प्लेबैक साइड ऑफ म्यूजिक एज वेल. जितने भी हम लोग सिंगल्स कर रहे हैं जहाँ पे फीचर हो रहा हूँ मैं, ऑनेस्टली ये भूषण जी का ही विजन है. ये मतलब ही ड्यूरिंग द लॉकडाउन ही केप्ट पुशिंग मी कि यार ये सिंगल करना है, आपने ये करना है, व्हिच वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एन आर्टिस्ट लाइक मी. वरना मैं शायद प्लेबैक की तरफ ज्यादा रह करके और फिर कुछ बीच में सिंगल्स करता. अभी एक्टिंग की तरफ ले जा रहे हैं मुझे. उसमें एक्टिंग करवाते हैं काफी और मेहनत करते हैं हम लोग उसमें काफी. हर आर्टिस्ट के लिए मुझे लगता है एक इंडिपेंडेंट स्पेस होना जरूरी है, क्योंकि दैट इज योर लॉन्ग टर्म क्रेडिट. जब आपका जो इंडिपेंडेंट स्पेस रहेगा, एक 90s का टाइम था जब एल्बम्स वर पीकिंग एंड शायद वही एक टाइम था जिस वक्त आई ग्रू अप. मेरा कॉलेज चल रहा था उस वक्त. तो आई हैव बीन वेरी वेल वर्स्ड विद दैट होल इंडिपेंडेंट स्पेस वेयर सिंगर्स आते हैं और अपने म्यूजिक वीडियोस करते हैं और फिर लोगों का सिर्फ उनके गाने से नहीं उनकी जर्नी से भी अटैचमेंट. So that has started happening during this lockdown जब भूषण जी ने इतने सारे singles मेरे से करे. तो yes, I think we are creating a time together जो eventually which will be very very good for the entire independent music. Faridun, I would like to add, कि अभी last 1 year में I think he is the only singer who has got the fastest streams across all the streaming sites, which is a very very big achievement. इतने गाने आके जितनी तेजी से गाने के streams हो रहे हैं, 80 million 90 million on one streaming site in less than 1 year, which is huge. So highest number of streams also he has got, which I'm very proud के T-Series singer has got this kind of numbers which are very very big. Whether it's YouTube में 1 billion से ऊपर within last 7-8 months में billion से ऊपर views हैं और plus streams भी billion के ऊपर ही streams, which is very very big. No, absolutely. ये I don't think इसके पूरे जब से इसने अपना कैरियर शुरू किया तब से उतनी चीजें नहीं हुई जो पिछले 1 साल में हुई. No, I think that is amazing. भूषण जी, जैसे आपने कहा कि टी सीरीज के आर्टिस्ट आपने एड्रेस किया ना. भूषण जी, बहुत बार हमने ये सुना है आपके काफी म्यूजिशियन से, म्यूजिक डायरेक्टर से, सिंगर्स से, आपका जो इन्वॉल्वमेंट जिस तरीके से गानों में रहता है कि दैट many a times the songs are your concept. You are part of the entire the way they are being made in terms of the music, and even so Nora told me that Bhushan ji called me up and that ये गाना एक है, जैसे अब छोड़ देने के बारे में आपने बताया, और ये तुम एक बार सुन लो और ये तुम्हें करना है that way. So even the music video, everything, many a times your contribution tends to be massive. Now जब आप देखते हैं कि वही गाने, चाहे वो फिल्म के हों या फिर नॉन फिल्म गाने हों, वो बहुत पॉपुलर हो जाते हैं. उसके बाद सिंगर्स दुनिया भर में शोज करते हैं और वो गानों को वो परफॉर्म करते हैं, और उसके बाद ऑडियंस रिएक्ट करती है, उनको सर्टेन तरीके से रिस्पॉन्ड करती है. मे बी आपने भी लाइव शो सर्टेन देखे होंगे. क्या आपके जहन में आता है कि यार ये गाना किस तरीके से हम लोगों ने पूरा प्लान किया था, कंसेप्चुलाइज किया था, और आज इसको ऑडियंस जो है वो लाइव ऑडियंस इस तरीके से मोहब्बत दे रही है और इस तरीके से उसको रिस्पॉन्ड कर रही है? What sort of a feeling is that for you, sir? That's a very very good feeling, and that's not new. That has from last so many years, like from first Tumbin and first Divana album, I am involved the way I am involved today. That time तो means I was too involved. अभी तो क्या होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं, तो इसलिए एक गिटार का पीस कैसा बजा वो देखना भूल जाता हूँ बस. तो वो थोड़ा रन थ्रू हो जाता है. Otherwise, from beginning, I wanted to train myself. क्योंकि मैं उस टाइम सीख रहा था, क्योंकि नया नया ज्वाइन किया था, कि हर चीज़ मुझे मालूम होनी चाहिए कि एक गाने के अंदर लिरिक्स माइंड ब्लोइंग होने चाहिए, हमेबल होने चाहिए, ट्यून
बहुत माइंड ब्लोइंग होनी चाहिए, उसके अंदर जो इंस्ट्रूमेंट है, जो बिगनिंग इंट्रो आएगा, M1 म्यूजिक 1 का पीस होगा, या आखिरी में कोई कोड़ा टाइप आएगा, या किस तरीके का आउट्रो होगा, उन सब में जो चीज़ गिटार बजनी चाहिए, या मैंडोलियन बजना चाहिए, या सितार बजना चाहिए, वो सारी चीज़ें मैं बहुत ज़्यादा माइन्यूटली देखता था। आज भी देखता हूँ, जैसे आज हमारा भी गाना आने वाला है फिल्म में, सत्यमेव जयते में, जिसमें मुझे एकदम ध्यान आया, मैंने रोचक को बोला, मैंने रोचक इसमें माउथ ऑर्गन से शुरू करा है, बहुत टाइम से किसी ने माउथ ऑर्गन नहीं सुना, तो उसने माउथ ऑर्गन से शूट किया। फिर मिलाप जवेरी, यू नो, ही इज वेरी मासी पर्सन, तो उसने बोला सर माउथ ऑर्गन है तो मैं जॉन से माउथ ऑर्गन से ही शुरू करवाता हूँ। वेरी गुड, कराओ। तो उसने माउथ ऑर्गन से ही वो गाना शुरू किया। तो इस सो यस, आई गेट वेरी मीन्स हैप्पी। एक गाने की, हर गाने की एक जर्नी होती है। लाइक इवन लुट गए, when we were making the song, मीन्स आज सिंगर को मैं देता हूँ, सिंगर गाता है, और अगर उसको शूट करना होता है तो आगे शूट करता है, और अगर कोई अपना इंटरव्यू तो देता है, बट उससे पहले की जो जर्नी होती है वो सिंगर को भी मालूम नहीं होती है। मैं तो जुबेन को भी नहीं मालूम है कि लुट गए के कितनी बार मैंने उसका उसके लिरिक्स चेंज करवाए, कितनी बार उसका मैंने पहले 2 अंतरे थे, 2 अंतरे की जगह मैंने बोला 1 अंतरा रखते हैं, एक आउटरो बनाते हैं। तो वो मेरे सब गानों में वैसे होता है, कहीं म्यूजिक पीस बजाना है, कहीं हारमोनियम बजाना है, वो सारी चीज़ें हम लोग, मैं और ये म्यूजिक कंपोजर्स जो भी उस गाने में इन्वॉल्व होता है, तो वी डू इट एज अ प्रोसेस। एंड जब वो पूरी मेहनत से और उस सोच से कि यार ये दुनिया को पसंद आएगा, तो दैट्स व्हाई आई से, मींस आई प्राउडली से, कि मींस के मेरे ईयर्स जो हैं वो पब्लिक टेस्ट के हिसाब से बने। आई नेवर मेक अ सॉन्ग विद माई टेस्ट, आई ऑलवेज मेक अ सॉन्ग विद पब्लिक का टेस्ट के साथ। ये मैंने पहले भी आपको कभी जवाब में दिया होगा ये चीज, वे वी मेक द सॉन्ग। एंड ऑब्वियसली व्हेन वो गाना जाके लोग परफॉर्म करते हैं और उसके ऊपर इतना, मतलब बहुत बार हुआ है अरिजीत सिंह के साथ, मैंने इतनी बार मैंने उसको गाना बोला यार गाना गाओ ये, तो वो कहते नहीं सर मुझे इतना समझ नहीं आ रहा। मैंने कहा तुम्हें समझ नहीं आ रहा तुम गाओ। सूरज डूबा एक गाना था, सूरज डूबा है, वो बोला तो सर ठीक है आपको लगता है बड़ा गाना है, मैंने कहा बहुत बड़ा गाना है, और उसको फिल्म फेयर अवार्ड मिला। तो सनम रे था, सनम रे बोला था सर ठीक है अच्छा गाना है, बट आपको नहीं लग रहा कि ये बहुत बड़ा होगा? मैंने कहा ये बहुत बड़ा होगा। अगेन ही गॉट ऑल द अवार्ड्स फॉर दैट। सो और एवरीवेयर ही परफॉर्म विद दैट सॉन्ग। देन देयर वाज वन सॉन्ग, क्रीचर में एक गाना था, कौन सा था वो? टोनी कक्कड़ का पहला गाना था जो मैंने उसको ब्रेक दिया था, बहुत बढ़िया गाना था एक। तो वो भी वो हर शो में गाता है। तो जो आप क्वेश्चन पूछ रहे थे ना कि जो एक प्रोसेस से गाने बनते हैं और जब वो परफॉर्म होते हैं तो क्यों, फिर बहुत अच्छी फीलिंग आती है कि यार जो हमने कन्विक्शन सोची थी और जिस कन्विक्शन से गाना बनाया था, वो गाने ने नंबर्स भी किए, स्ट्रीम्स भी हुआ, यूट्यूब पे भी चला, और वो शो में उसकी सामने से डिमांड आती है। अगर कोई सिंगर गाता नहीं है तो उसकी डिमांड आती है। यही गाना एक था ये जो अरिजीत ने भी गाया अपना कबीर सिंह में, और इसने भी जुबेन ने भी एक वर्जन गाया, कौन सा अपना, तुझे कितना चाहने लगे हम का वर्जन, जो आज हंगामा की साइट पे या सावन पे सब मिला मुलू के कुछ 1 बिलियन स्ट्रीम्स है, 1 बिलियन स्ट्रीम, विच इज ह्यूज। दैट इज सच अ बिग सॉन्ग। मींस ये भी मतलब हर वर्जन, उसका मेल वर्जन का इतना है, उसका अनप्लग वर्जन इतना है, उसका जुबेन वर्जन इतना बड़ा है, all things are big, and that is also a song which had a very big process. Nobody wanted to put that song in the film. I was fighting for it. उसका एक अरेंजमेंट था, उन्होंने बोला अरेंजमेंट चेंज करो तब हम फिल्म में फिट होएगा, तो मैंने कहा मैं अरेंजमेंट चेंज करता हूँ लेकिन ये गाना तो फिल्म में आना ही चाहिए। मतलब आई डोंट वांट टू नेम बट एवरीबॉडी वाज अगेंस्ट दैट सॉन्ग, लेकिन मैंने वो पुश करके गाना डलवाया, फिल्म में डलवाया, और उसको 2 सिंगरों से उसके दो अलग अलग वर्जन थे। तो एक फिल्म वर्जन था और एक एल्बम वर्जन था। हमने दोनों वर्जन गवाए, एक अरिजीत से और एक जुबेन से, और दोनों आज के दिन में हिस्टोरिक गाने हैं। और आई डोंट थिंक कोई भी शो में उसके बाद इसको उसके बिना मतलब कोई मानता नहीं होगा हर जगह, क्योंकि मैंने एक शो में इसका क्लिप भी देखा जिसमें पीपल वर डिमांडिंग फॉर दिस सॉन्ग। ये एक लाइन गाता था, लोग पूरा गाना गा देते थे आगे। करेक्ट, ऐसा कुछ आता है एक शो। सो हर वो प्रोसेस होता है और इससे बहुत खुशी होती है और एक इंस्पिरेशन मिलती है कि यार ये सिर्फ एक जगह पे नहीं, थ्रू आउट लोगों को शोज में इसमें बहुत पसंद आते हैं गाने।
तो यू गेट दैट काइंड ऑफ इंस्पिरेशन, फिर उससे आप और हिट गाने बनाते हैं। तो जैसे मैंने ये पहले गाने बनाए और हिट हुए, तो हमने फिर लुट गए बनाया, और अब लुट गए के बाद एक और गाना है जो इसी कॉम्बिनेशन में बना रहे हैं, जिसमें इमरान हाशमी भी होंगे, जुबेन भी होगा, सब लोग होंगे, और वो भी एक बना रहे हैं। हालांकि उससे पहले इसके 2-3 और सिंगल्स आ रहे हैं विच आर ऑल्सो ह्यूज। सो यस, दिस इज इट।